Hello friends, I am Kushal D. Patel. I am in a COA. Today I am going to teach you in a chapter memory management. Specific topic is RAM, random access memory, and in this we will see how to design a RAM chip and calculation of the chip, about the capacity, how you will calculate number of chips requirement, address line and decoder etc. to design particular memory. So first of all we will see a memory chip. In this the block diagram of RAM will be like this. There is a two chip select pin will be there. One is CS1 and another is CS2, but it has a bar on it. Okay, and we all know RAM has a two functionality. One is reading and another is writing. Okay, so reading means you are reading from the memory RAM chips, and writing means you are writing at a RAM. Okay, and there will be a address line. So AD is a address line, CS is a chip select, CS2 is also chip select, and read operation, write operation, and address line. This address line will be of N, and here there is an output line which is called as data line or data bus. Okay, so data bus, this output may be 8 bit, 16 bit, 32 bit etc. Power of 2 raised to n. So this will be dependent on data bus, how your computer or processor provide how many data bus, how many data bits are available for that database. So basically why this in this chip, why there are two chips is there, because if there is only one chip select pin, and we required हम लोगों को actually we require two operation. One is reading and another is writing. ओके, एक रीडिंग ऑपरेशन है, दूसरा राइटिंग ऑपरेशन है. इसीलिए अगर हमारे पास एक ही चिप सिलेक्ट होता तो ज़ीरो पे तो चिप सिलेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज पावर इज़ लो, सो कोई चिप सिलेक्ट होगा ही नहीं. और वन होगा तो इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन करना है वो डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ओनली वन bit is high. We cannot decide whether we are going to perform reading operation or write operation. So that's why there is two chip select pin is there. And to enable this chip, you have CS1 should be always high and CS2 should be low. Why CS2 is low? Because it is a bar. Because CS2 is a bar, or we can say it will be high only when you are providing here 0. So that's why this chip has a two chip select pin, one reading pin, one is writing pin, and another is address line. Now we design a table for this CS1, CS2, write and reading. Okay, now what will be the memory function based on this input and state of बस. आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा डेटा बस में, वो हम लोग डिसाइड करेंगे. स्टेटस ऑफ दैट बस मैंने पहले ही आपको बता दिया. आई विल टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इफ CS1 इज हाई एंड CS2 इज लो, then only your chip will be enabled. So for another combination 0 0 0 1 and 1 1 will be not select our chip. Why? Because CS1 is 0, that means chip will be not selected here again. And another situation is that if CS1 is 1 and CS2 is still 1, then we cannot enable that chip, because CS2 is required low, then only our chip will be selected. Again, one more is that if CS1 is
1, CS2 is 0, and both reading and writing will be 0. At that time also your chip will be not selected. Okay. अगर हमारे पास यहाँ पे CS2 में 1 होगा तो भी चिप सिलेक्ट नहीं होगा, और CS1 में 0 होगा तभी चिप सिलेक्ट नहीं होगा. दूसरा है कि रीडिंग और राइटिंग में भी अगर लो हुआ, वेदर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, फिर भी हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. अब हम लोगों को ये सब उस टाइम पे डोंट केयर हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग पे. अब हमको क्या करना है, रीडिंग ऑपरेशन कब होगा, जब भी CS1 1 होगा एंड CS2 विल बी 0, रीडिंग विल बी 1 एंड राइटिंग विल बी 0. एट दैट टाइम आवर चिप विल बी मेमोरी हैज़ अ रीडिंग ऑपरेशन. ओके. और रीडिंग के टाइम पे क्या होगा, रीडिंग के टाइम पे हम लोग कहाँ से रीडिंग कर रहे हैं, तो मेमोरी से. तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी में से रीड कर रहे हैं इसलिए मेमोरी में से आउटपुट जाएगा. और एग्जैक्टली अपोजिट, अगर मेरा रीडिंग 0 है एंड राइटिंग 1 है तो राइट ऑपरेशन होगा मेमोरी में से, और इनपुट डेटा टू रैम. जो भी डेटा बस है वहाँ से ये जो है 2 वे होगा. हम रीड करेंगे तो डेटा आउटपुट होगा, और राइट करेंगे तो डेटा रैम में इनपुट होगा. ठीक है. तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है. इजी है चिप डिज़ाइन करना. अगेन हम लोग देख लेते हैं. चिप में क्या होगा, एक CS1 पिन होगी, दूसरी CS2 पिन होगी, लेकिन CS2 क्या है, लो पे ही सिलेक्ट होगी, बार है इसीलिए. और दूसरा है रीडिंग और राइटिंग. जब भी रीडिंग 1 होगा तभी रीडिंग होगा, और राइटिंग 1 होगा तभी राइटिंग होगा. और दूसरा होता है एड्रेस बार. अब यहाँ पे व्हाट इज एड्रेस बार का मीनिंग क्या हुआ. एड्रेस लाइन डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितनी लाइन है. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारी एड्रेस लाइन 1 है तो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी होगी 2x8. दैट मीन्स व्हाट, हम लोगों की मेमोरी की साइज ओनली 2 बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन रैम. इफ address line is 2, if address line are total address line are 2, then our capacity of the RAM will be 2 to 2. that means 4. Total 4 bytes will be write into RAM. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 7 एड्रेस लाइन है, तो हम लोग 2:7 दैट मीन्स 128 बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं. टोटल 128 बाइट्स का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं. अगर मेरी एड्रेस लाइन टोटल 7 दैट मीन्स A0, A1, A2, A3 लाइकवाइज अप टू A6, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है और टोटल हमारे पास 7 लाइन्स है. सो हमारी रैम की कैपेसिटी कितनी हुई, 128 बाइट्स. तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि बेस्ड ऑन एड्रेस लाइन हमारे एक रैम की कैपेसिटी डिसाइड होगी. अब हम लोग जब भी अभी लैपटॉप परचेस करने जाएंगे तो हम लोगों को बताते हैं कि हमारे लैपटॉप की टोटल कैपेसिटी 32 GB है या 16 GB है. लेकिन क्या होता है, हम लोगों के सिस्टम में अंदर इधर 4 GB की रैम होती है या तो 8 GB की रैम ही वो लोग डाल के देते हैं, और बोलते हैं कि आपके लैपटॉप में 2 रैम स्लॉट है. दैट मीन्स व्हाट, आप 16 GB कर सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, 8 GB की 2 GB की 2 रैम चाहिए. ठीक है. तो यहाँ इसके हिसाब से हम लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे पास 8 GB मेमोरी बनाना है और अपने पास टोटल 2 ही स्लॉट है, और एक स्लॉट में आप लोग मैक्सिमम 4 GB डाल सकते हैं, तो आप लोगों को कितनी रैम चाहिए. तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, 8 GB माइनस 4 GB. हमारे पास 8 GB टोटल मेमोरी बनाना है और एक रैम की साइज़ ओनली 4 GB है, तो हम लोगों को 8 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 2. टोटल 2 रैम चिप्स चाहिए. ठीक है. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2048
बाइट्स का हम लोगों को रैम का डिज़ाइन करना है और हमारे पास एक रैम की साइज़ है, एग्जाम में ऐसा दिया होगा 124x8 इतना ही दिया होगा। दैट मीन्स ये क्या बताता है कि हमारा रैम की साइज़ है 128 बाइट्स एंड इट हैज़ अ 8 आउटपुट लाइन। ठीक है। सो अगर हम लोगों को पूछा है कि हमारे पास टोटल 2048 बाइट्स का रैम में टोटल मेमोरी बनाना है और एक रैम की साइज़ है 128x8 ऐसा दिया हुआ, तो कितनी रैम चाहिए? तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपल 2048 डिवाइड बाय 128। सो दिस इज सिंपली होगा, हम लोगों को चाहिए 2^11 divided by 2^7. 2048 means 2^11 and 128 is what, 2^7. So total 2^11 minus 7 2^4, total 16 चिप्स चाहिए होगी हम लोगों को। क्या 2048 बाइट्स टोटल मेमोरी बनाना है हम लोगों को, टोटल मेमोरी बनाना है और एक रैम का साइज़ है 128x8। उसमें बोला जाता है कि 128 बाइट्स एक रैम में आप स्टोर कर सकते हो और उसकी आउटपुट लाइन डेटा बस में जो लाइन जा रही है वो 8 लाइन्स है, टोटल 8 बिट वो आउटपुट कर सकता है। तो हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से तो 2048 डिवाइड बाय 128 करना है। सो आंसर विल बी 2^4, दैट इज टोटल 16 चिप्स चाहिए। अनदर एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को डिज़ाइन करना है 1024 बाइट्स का टोटल मेमोरी बनाना है और एक रैम का साइज़ है 64x4 ऐसा दिया होगा, 64+4 1 चिप साइज़। ठीक है, 1 चिप साइज़। तो हम लोगों को सिंपल क्या करना है, 1024 डिवाइड बाई 64, ये 4 है उसको अभी निगलेक्ट करना है। ठीक है, सो 1024 मीन्स 2^10, 64 मीन्स 2^6, so 2^10 minus 6 total 2^4. So again you will require total 16 chips. You're getting? Okay. So ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरा ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 2048 बाइट्स का रैम डिराइव करना है तो टोटल कितनी एड्रेस लाइन होगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, 2048 इंटू 2^x। अभी जितना भी x होगा उतना हमारा एड्रेस लाइन बनेगा कि एड्रेस लाइन जो है चिप में कितनी चाहिए, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 2048 बाइट्स दिया हुआ है तो 2^s कर देना का, और 2048 मीन्स 2^11, 2^x, सो x इक्वल टू 11। सो अगर मेरा रैम का साइज़ 2048 बाइट्स है तो उसके डिज़ाइन करने के लिए, उसकी चिप डिज़ाइन करने के लिए मेरे को यहाँ पे जो एड्रेस लाइन है वो कितनी चाहिए, टोटल 11। हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था कि अगर मेरे को 128x8 बाइट्स का डिज़ाइन करना है तो एड्रेस लाइन कितनी होगी, तो क्या करना है, 2^x इक्वल टू 128, सो 2^x इक्वल 2^7, सो टोटल x इक्वल टू 7। सो एड्रेस लाइन कितनी होगी, तो 7 है। ठीक है, सो I think you will get by this lecture about how to design RAM chips। उसमें एड्रेस लाइन कितनी चाहिए, डेटा बस में कितनी लाइन आएगी, क्यों हम लोगों को 2 चिप्स दिया हुआ है, रीड ऑपरेशन कब होगा, राइट ऑपरेशन कब होगा, वो अब हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल में से देख लिया है। तो ये टेबल एक याद रखने का है कि कब चिप का कौन सा इनपुट हो रहा है, कब रीड होगा, कब राइट होगा, मेमोरी में कौन सा ऑपरेशन होगा, रीड राइट होगा, और डेटा बस का क्या होगा। अगर रीड ऑपरेशन हो रहा है तो आउटपुट ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी में से डेटा जाएगा, और रीड राइट कर रहे हो तो इनपुट
डेटा टू रैम होगा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक देखा चिप्स कैसे कैलकुलेशन करना है। हम लोगों को दिया होगा इतना साइज़ का मेमोरी बनाना है, एक चिप की साइज़ इतनी है तो टोटल कितनी चिप्स आर रिक्वायरमेंट। सो ऐसे सिंपल करने का टोटल मेमोरी साइज़ डिवाइड बाय एक चिप का जो भी साइज़ है, वन चिप साइज़, उसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उतनी रैम चाहिए। और तीसरा देखा हम लोगों का एड्रेस लाइन कितनी चाहिए, हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड। सो वो कैसे डिसाइड होगा, अगर हमारा टोटल मेमोरी का साइज़ है रिक्वायरमेंट है 1024 बाइट्स, तो हम लोगों को क्या करना है 2x इक्वल टू 1024 करना है। 2x इज इक्वल टू 210, 1024 मानेंगे 210, सो x इक्वल टू 10। तो 1024 बाइट्स बनाने के लिए हम लोगों को अगर एक रैम का साइज़ 1024 बाइट्स बनाने के लिए हमारे लोगों को एड्रेस लाइन कितनी चाहिए 10, ठीक है। थैंक यू।